This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع رمضان اور اصلاح معاشرہ۔ آج ہمارے پروگرام میں عزت مآب جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی، چیئرمین گلستان گروپ آف کمپنیز، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ ملتان، معروف مذہبی اسکالر، صاحب کتاب، قاری و نعت خواں، گویا ہمہ جہت شخصیت کے مالک۔ علاوہ ازیں آپ گلستان لائنز کلب ملتان کے صدر بھی ہیں اور YCDO کے روح رواں بھی۔ جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان معروف تاجر و سماجی رہنما، صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان، جناب میاں محمد جاوید قریشی۔ میاں صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی کہ تلاوت و نعت کا جو شرف ہے وہ عزت مآب جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب کو حاصل ہوگا۔ تو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قاری صاحب، اگر اجازت دیں تو میرا نعتیہ مجموعہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر، اچھا، ماشاءاللہ، اور اس میں جو ایک رباعی ہے جی، جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کا ترجمہ ہے، اچھا، یعنی منظوم، ہاں، تو وہ بسم پیش اللہ، کروں۔ میں خود پیش کر دیتا ہوں، میں اس کو سر کے ساتھ پیش کر دیتا جی، ہوں، یہ دیجیے گا۔ اور سارے کام تو تمہارے ذمہ نہیں لاؤں نا دیں تسا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خیر کثیر کے مالک سرور، دیتے ہیں بھر بھر کے ساغر، دشمن سارے آپ کے ابتر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر۔ خیر کثیر کے مالک سرور، خیر کثیر کے مالک سرور، دیتے ہیں بھر بھر کے ساغر، دشمن سارے آپ کے ابتر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر، خیر کثیر کے مالک سرور، خیر کثیر کے مالک سرور، دیتے ہیں
भर भर के सागर, दुश्मन सारे आपके अबतर, दुश्मन सारे आपके अबतर। इधर वाले भी उधर वाले भी सारे दुश्मन, हाँ जी, दुश्मन सारे आपके अबतर। इन्ना आदइना कल कौसर, खैरे कसीर के मालिक सरवर। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। देखा ना कारी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इन्ना आतेना कल कौसर का जो मेरा मंजूम तर्जुमा था, जो रुबाई थी, उसे तरन्नुम के साथ पढ़कर माशाल्लाह आपने समा बांध दिया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। यकीनन यकीनन रमज़ान के जो बाबरकत लम्हात हैं, ये यकीनन उनकी करामत, यकीनन यकीनन। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्त से वापसी के बाद इंशाअल्लाह जो हमारा मौजू है रमज़ान और इस्लाह मुआशरा, उस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता।
पुलायर डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइक की जब किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किड़े दाग ते किड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले आपने जनाब कारी मियाँ अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब की आवाज़ में तिलावत और नात समात की, और अब चलते हैं उनकी तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जो इस्लाह मुआशरा है, अमूमन हमारी कोशिश होती है कि हम दूसरे को तो नसीहत करें लेकिन ख़ुद उस पर अमल पैरा ना हो, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस्लाह का अमल अपनी ज़ात से शुरू होना चाहिए? ये बात दुरुस्त है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ मक्सद न्यूज़ का, जिन्होंने हमें इस अपने बाबरकत महीने में एक इंतहाई अहम मौजू पर हमें दावत गुफ्तगू दी। जहाँ तक इस्लाह मुआशरा का ताल्लुक़ है, असल में ये सवाल था मेरे छोटे भाई मियाँ जावेद कुरैशी साहब का ना। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में बहुत इनकी काविशें हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि हमारे जब हम पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा कहते थे, कहा करते थे, और आपसे भी हमने सुना, बुज़ुर्गों से सुना, बड़े दोस्तों से सुना कि भाई जब खेलों के मैदान आबाद होंगे ना तो हस्पताल वीरान होंगे।
ठीक है ना जी। मियाँ साहब ने अपनी तिजारती जो ज़िंदगी है उसमें से अपनी नेक कमाई में से इन्होंने बहुत ज़र कसीर खर्च किया और कोशिश की कि एक जो खेल के मैदान है वो आबाद रहें और वहाँ पर ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है वो बजाय इसके कि नशे में और बजाय इसके कि दीगर एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया करें, वो एक सेहतमंद जो है अपनी लाइफ को एक जिसको कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल अपना बनाएं। उसमें इन्होंने ना सिर्फ फुटबॉल एसोसिएशन की बुनियाद रखी, बुनियाद उनके बुज़ुर्गों ने रखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसको आगे 4 चांद लगाए और ख़ूब अच्छे तरीके से। और आज तक अपना, मैं फिर दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपनी जेब से ज़र कसीर खर्च करके हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोशिश की कि मैदान आबाद रहें और हर साल बहुत बड़ा इवेंट करवाना। तो इस्लाह मुआशरा के लिए आप मुझे बताएं इससे बड़ी काबिश क्या हो सकती है? बड़ा रिलेट किया जी जी, ये भी इस्लाही मुआशरा है सर, यही तो ही इस्लाही मुआशरा है ना किबला, यही तो असल इस्लाही मुआशरा है। बाकी इनकी जो एसोसिएशन है और ख़िदमात हैं उससे तो पूरा एक जो हमारे मुल्तान का पूरा जनूबी पंजाब उससे वाकिफ़ है। और ये अज़हर मिन शम्स है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस मामले में जो है ना कभी भी इसमें जो है ना कोताही नहीं बरती और जैसे भी हालात रहे हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना इस्तकामत दिखाई है। और इसी तरीके से आप ये देखें कि फ़ुटबॉल एसोसिएशन में हालांकि लोगों की इतना रग़बत नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े जो हमारे जो यानी कि फ़ुटबॉल के प्लेयर हैं उनको एक जगह पे इकट्ठे करना, ठीक है, फिर उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करना, फिर वो नहीं होता था इंतज़ाम, फिर बाकायदा MCC ग्राउंड में बहुत सारा फंड लगा के क्या हॉस्टल बनाया गया, पूरा कम्प्लेक्स बनाया गया जी, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें की गई। कलीद वो तो ज़ाहिर सरपरस्त है ना जी, उनके बगैर तो ये ज़ाहिर है बात ही मुकम्मल नहीं हो सकती ना जी, फुटबॉल एसोसिएशन की बात ही नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इस्लाह मुआशरा में इसी तरह से हर बंदा अपना किरदार अदा कर सकता है। आजकल के जो हालात हैं जैसे कोरोना है, दीगर मामलात हैं, अब इसकी वजह क्या है? कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम मैं पेश करता हूँ। पिछले दिनों मुझे सआदत हासिल हुई कुरान पाक की तिलावत की। हाँ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया उस आयत मुबारक में कि मैं साल के अंदर 2 दफ़ा हर बंदे पे आजमाइश लेके आता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि वो तवाज़ु अख्तियार करें। अच्छा, अब मैंने इसको जब पढ़ा तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और फिर खुश भी हुआ। मसलन अल्लाह फरमाता है कि मैं 1 साल में 2 दफ़ा तुम लोगों को आजमाइश में डालता हूँ ताकि तुम तवाज़ु अख्तियार करो। इसका मतलब ये है कि अगर हम तवाज़ु अख्तियार करें तो अल्लाह हमें आजमाइश में भी नहीं डालेगा। ठीक है, अब इस्लाह मुआशरा और रमज़ान मुबारक देखें, रमज़ान मुबारक आपको डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो आपका दिल चाहे या ना चाहे, जो काम जिस टाइम पे और जिस तरीके से करना है उसको करना है, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। चाहे आपका दिल, हमारा दिल चाहे या हमारा दिल ना चाहे, जो उसको, हाँ जी, उसको ओबे करना है। इसको डिसिप्लिन की तशरीह ये है। रमज़ान और इस्लाह मुआशरा देखें ना, अब रमज़ान में खाना पड़ा है, अगर रोज़ा से है बंदा वो खाना नहीं खा सकता, ठीक है ना जी, उसमें डिसिप्लिन है ये। अब देखें ना, अभी हमारे कायदे मोहतरम जो हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने यही ईमान, इत्तेहाद, तंजीम इसका दर्स दिया। अब डिसिप्लिन उसमें आता है। हमारी कौम को जो है अभी ये रमज़ान के हवाले से डिसिप्लिन का, यानी कि हालांकि मुज़ाहरा सब करते हैं लेकिन असल उसके मफ़हूम तक हम नहीं पहुँचते कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है। अच्छा जी, अभी सहरी है, वो टाइम गुजर गया तो बस आप फिर कुछ नहीं खा सकते। अफ्तारी है तो बस फिर आपका मूड है या नहीं है, आपने अफ्तारी करनी है। नमाज है, टाइम हो गया, आपने पढ़ना है। हज है तो हज के दिनों में ही आप हज कर सकते हैं। अब भी मैं और आप जनाब राजा कौसर सईद साहब कहें जाओ चलिए हज करके आइए, तो अभी हज नहीं हो सकता। हाँ जी, उसके लिए ख़ास एक टाइम है। इसी तरीके से क्या चीज़ ऐसी है जो रमज़ान मुबारक में इस्लाह मुआशरा से बाहर है? अभी आप देखें हमारे मुआशरे के अंदर कितनी खूबी हैं। आप देखें, मैं जैसे अभी अर्ज़ कर रहा, छोटे भाई मियाँ जावेद कुरैशी साहब की मैंने जो खिदमात आपको अर्ज़ की हैं,
इसका तो एक छोटा सा ये एक छोटा सा पहलू है, बजाते खुद तो ये खुद बताएंगे आपको, लेकिन असल हकीकत यह है कि बात वही होती है जो दूसरा तारीफ़ करे ना जी, तारीफ़ भी वही होती है अपने मुंह, तो वो कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनने वाली बातें होती है ना जी, ठीक है ना जी। अभी इसी तरह से आप देखें कि हमारा जो YCDO का इदारा है, ठीक है, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप जाके देखें, रात के 2 बजे के बाद वो सहरी शुरू होती है सर, और 4 बजे तक सहरी चलती है, और तकरीबन 2000 लोग डेली, अनगिनत 2000 तो कम से कम सर हम बना रहे हैं खाना जी, 2 टाइम के खाना बना रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है ना जी, और चल रहा है। और इस तरह से ये तो छोटा सा सेटअप है सर, ये तो छोटा सेटअप है, ऐसे हज़ारों सेटअप चल रहे हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में, ये मुल्तान में, कराची में, लाहौर में। ये तो हमारी ज़्यादती है, हम कहते हैं हमारे माशरे में ये बुराइयाँ आ गई, फलां हो गया, क्या बुराइयाँ आ गई हैं जी, मुझे बताएं। अभी भी आप देख लें हमारे जो हमारी जो अखलाकियात हैं वो पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी वो अखलाकियात नहीं है। जो माँ बाप की इज़्ज़त हमारे दिलों में है, पूरी दुनिया में आप मुझे ढूंढ के दिखा दें। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम पाकिस्तानी कौम के अंदर है, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ शायद किसी के अंदर हो। मिन हैसुल कौम, फर्दन तो होगा, अरब में भी होंगे, अजम में भी होंगे, सब होंगे फर्दन, लेकिन मिन हैसुल कौम, पूरी कौम एक जगह पे बिल्कुल इकट्ठी हो, नामूस रिसालत में नो कम्प्रोमाइज़। अब मुझे बताएं, रमज़ान इस्लाह मुआशरा, मुझे बताएं जी, देखें खाना फ़ी सबीलिल्लाह, सखावत, डिसिप्लिन, रोज़ेदारी, नमाज की पासदारी, हालांकि तमाम तर जो हमारे ऊपर जो कवानीन लागू हो रहे हैं वो सारे ही हमारे अपने कवानीन नहीं है, बल्कि हमारे दुश्मनों के कवानीन हमारे पर लागू किए जा रहे हैं, यहूदी लॉबी के कवानीन लागू किए जा रहे हैं, हमारे कवानीन नहीं है। देखा ना, आप देखें अरसा दराज से स्पीकर बंद है, उसके ऊपर पाबंदी है जी, ठीक है, इस स्पीकर के ऊपर आप तबलीग नहीं कर सकते जी, वो अंदर तक सिर्फ महदूद हो गया जी, ठीक है ना जी, जी ख़ास वक्त के लिए जी। उसके बाद आप देखें मीडिया पे देखें आप किस तरह के जो है ना लेक्चरदार प्रोग्राम जो है ना जी, उनकी जो इजारादारी हो गई है। सब में कदा कलाम मुझे इजाज़त दीजिए, देखना अफ्तारी के टाइम और सुबह सहरी के टाइम जो इबादत का वक्त है, उसमें वो जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आप यकीन कीजिएगा हमारी मुआशरत से वो मेल ही नहीं खाते जी जी, और लोगों को जो है ना पता नहीं अजब दूसरी तरफ जो है वो रागिब किया जा रहा है। मजा फरमा रहे हैं, इतने बड़े बड़े उलमा जो हैं, वो डॉक्टर क्या नाम है उनका, वो आमिर लियाकत साहब का जो नागन वो प्रोग्राम चला है, कोई हद हो रही है, कोई जी शर्म आती है देखकर उसे। अच्छा, अब इस तरीके से मकसद कहने का ये है कि हर बंदा इस तरीके से जो है ना जी, वो मतलब है कि उसके बावजूद मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मीडिया हमारे साथ क्या कर रहा है, सही कह रहे हैं, हमारे साथ कवानीन क्या कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है जी। उसके बावजूद आप देख लें कि हमारे यहाँ जो है अखलाकियात का जो लेवल है और सखावत का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। सही फरमाया आपने, सही फरमाया आपने। अच्छा मियाँ साहब, गो आजकल कोरोना है, खेल नहीं हो रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लाही माशरा में खेल भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो मुल्तान में जैसा भी जिक्र हुआ कि मलिक सलाहुद्दीन डोगर, उन्होंने बड़ा काम किया, फिर उनके फ़र्जंद जो हैं, फ़र्जंद मुल्तान मलिक आमिर डोगर साहब, वो माशाल्लाह आपके दोस्तों में से हैं, तो आप उनके साथ मिलकर जो है वो इस्लाही माशरा के सिलसिले में नौजवानों को इस तरफ राग़िब करते हैं। तो ज़रा इस बारे में बताइएगा कि भाई क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मक्स न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने रमज़ान में, पिछले साल भी रमज़ान में मुझे बुलाया था, और ये दूसरा रमज़ान है, मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि दूसरे रमज़ान का भी प्रोग्राम किया और हमें बुलाया। तो मेरी तरफ से पूरी टीम को, अकमल भाई को और उनकी पूरी टीम को मुबारक हो दूसरे रमज़ान की। आपने खेलों की बात की, मलिक सलाहुद्दीन डोगर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सरपरस्त आला थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो वफात पा गए। उनके बाद उनके बेटे मलिक आमिर डोगर साहब, उनको वो सरपरस्त आला हैं। तो मलिक साहब ने फ़ुटबॉल के लिए बड़ी खिदमत थी उनकी। फ़ुटबॉल के तो वो ऐसे थे कि आप सोच नहीं सकते कि हम एक टूर्नामेंट कराते हैं फ़ुटबॉल, किला कोना कासिम बाग पे जो होता फल राइट, तो मियाँ साहब भी उसमें आते हैं चीफ गेस्ट बन के, और उसके अंदर आज आपको एक बात बताऊँ, उसमें फातिमा जिन्ना साहब भी उसमें चीफ गेस्ट बन के आए उस टूर्नामेंट में। जी जी जी, और वो इतना बड़ा टूर्नामेंट है सर, वो उसमें पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 40 से 45 क्लबें आती हैं, टीमें आती हैं, जिसमें डिपार्ट भी होते हैं, और पूरे पाकिस्तान के, और उनको उसमें तकरीबन 400 से 500 बंदा उसमें होता है। उसमें सबको हमें रिहाइश देनी पड़ती है,
सबको खाना देना पड़ता है, सब कुछ, मतलब कि मुल्तान में एक मेला लग जाता है वो टूर्नामेंट मेजबानी करनी पड़ती है। जी, मुल्तान में एक मेला लग जाता है उस सूरत। मतलब साहब लोगों की खिदमत ये कि पहले ये होता था कि हम उन क्लबों को जो टीमें आती थी उनको होटलों में ठहराते थे, हमारा बड़ा खर्चा हो जाता था, एक टूर्नामेंट 30-35 लाख रुपए खर्च हो जाता था। अब जब मतलब साहब लोगों ने जो फुटबॉल हाउस हमारा बनाया, तकरीबन 40 कमरे उसके अंदर, AC लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, हम वहाँ पे सारे टीमों उठाते हैं। अब हमारे बर्डन ये होता है, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए इस दफा भी अपने टूर्नामेंट का 18 से 20 लाख रुपए हमने खर्च किए टूर्नामेंट पे। तो उसमें ये मतलब सर लोगों की खिदमत है कि अब किला कोना कासाबाग स्टेडियम, अभी उसकी आधी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, आधी मतलब सलाह लोगों ने बनवाई। उसके बाद हमारा जो ये जहाँ रिहाइश की जगह बनाई हुई है हमने फुटबॉल हाउस, उसके अंदर 40 कमरे बनवाए, AC लगे हुए हैं, सब चीज़ उसके अंदर है। तो उनका मिशन ये होता था मतलब सर डोगर का कि मुल्तान में जितने भी ज़्यादा खेल हों, तो उन्होंने मतलब हॉकी ग्राउंड बनवाया हुआ, एक स्पोर्ट ग्राउंड में ग्राउंड बनवाया हुआ। मतलब उनका मेन मिशन यही होता था कि मैं ग्राउंडों का आबाद करूं, हॉस्पिटलों को वीरान करूं। और नौजवान नस्ल इस तरफ आगे, यूथ को ज्यादा कोशिश होती है, यूथ को लेके उसी मिशन पे हम चल रहे हैं अब। उनके मिशन को आगे लेके चल रहे हैं ताकि उनकी यादें लोगों को रहें, क्योंकि मतलब सर डोगर का यही शौक था फुटबॉल। अब उनका बेटा भी उसी तरह काम कर रहा है हमारे साथ मिलकर, वो सरपरस्त आ रहा है उसी तरह। मतलब कि अब उन्होंने अभी मैंने हाल ही में 15-20 दिन पहले रशीदाबाद में ग्राउंड का संग बुनियाद रखा था, वो अभी 4 दीवारें शुरू हो गई है। एक उन्होंने अपने क्या नाम है मुंतैबाद के अंदर एक ग्राउंड तैयार हो रहा है, किला कोना कासाबाग की हमारी पवेलियन रह गई थी, वो हमें डोगर साहब ने मंजूर कराई, उसमें काम हो रहा है। स्पोर्ट ग्राउंड में एक पवेलियन बन रहा है, बड़ा खूबसूरत पवेलियन बन रहा है, उसमें हमें डोगर साहब मतलब कि वो फुल मतलब स्पोर्ट के साथ अटैच है और बड़ी दिलचस्पी है उनकी। तो हम भी यही चाहते हैं कि मेरे ख्याल स्पोर्ट में वाहिद घराना मतलब सर डोगर घराना है कि जो खेलों में हिस्सा लेता, बाकी कोई सियासतदान मुल्तान के ऐसे नहीं जो खेलों में हिस्सा ले, वो वाहिद घराना जो खेलों में हिस्सा लेता। और जैसे हम उनको मतलब कहते हैं वो बढ़ चढ़ के हमारे से बढ़ चढ़ के काम करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके वालिद की सारी यादें हैं। तो हमने भी यही मिशन उनके वालिद साहब को मिशन आगे रखा हुआ, उसको चला रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे चलवाता रहे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हो जाता है, और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह मियाँ साहब से पूछेंगे कि इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में जो वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और खुतबा हैं, उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो, Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। मचती है हलचल, हलचल, दिल बोले वो, दिल बोले वो। बूम बूम मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ।
वाओ, गिफ्ट्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs Pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया
वेलकम बैक नाज़रीन। मियाँ अब्दुल कोई साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस्लाही मुआशरा के हवाले से असातिज़ा, उलमा और वालिदैन पर जो भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है उसके हवाले से इरशाद फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस्लाह मुआशरा का ताल्लुक़ है, इसकी उसी तरह से ही इस्लाह होगी जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की इस्लाह की। जिस वक्त मुआशरा अपनी ज़बूहाली का शिकार था, जिस वक्त मुआशरती एतबार के साथ इंसानियत सिसक रही थी, जहालत जो है वो नाच रही थी और हर तरफ जहालत का दौर दौरा था, जब ज़िंदा बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा था और उस वक्त जब पानी पीने पिलाने पे जो है जंगें हो रही थी और साल साल और 100 साल 200 साल तक जो है वो ना ख़त्म होने वाले मामलात और फसादात शुरू हो गए थे और भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था। उस जहालत के दौर में जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह मुआशरा का बेड़ा उठाया, उसी तरीके से उसी नहज के ऊपर हमें शुरू करना पड़ेगा। असातिज़ा को, उलमा को और तमाम वालिदैन को क्या करना है? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाना पड़ेगा। उलमा को, वालिदैन को, असातिज़ा को, और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले आप ये अदब सिखा दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप सारे रिजल्ट आपको हासिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात जी। बाअदब बानसीब। वाह। उसके बाद किसने सिखाया कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्र यतीम हैं, हमारे नबी पाक रहमतुल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इखलाकियात हसना थे। जब आपने मक्का पूरा फतह कर लिया और आप चाहते तो सबको सबकी गर्दनें उड़ा देते, आपने सबको माफ़ी दी, हत्ता कि अपने मुखालिफ तरीन दुश्मनों को बख्श दिया आपने, और आपने फरमाया कि जो उनके घर में पनाह लेगा उसको भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, इस वक्त ज़रूरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना का प्रचार करना, उजागर करना, आपकी मोहब्बत अपने औलाद के दिलों में डालना। जी, जब ये हम डाल देंगे उसके बाद इस्लाह मुआशरा। अब मुझे पता है किसी बाप से आपने सुना कि यार जब कोई बंदा फौत हो जाए अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मोहल्ले में, खुदा न खास्ता, तो आप उसकी ताज़ियत के लिए जाएं। मैंने नहीं देखा किसी बाप ने बुलाया अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, जो भी दोस्त अहबाब हैं उनको बुलाया और समझाया हो कि बेटा ये बहुत ज़रूरी होता है, ये दुख के लम्हात होते हैं, इसमें बेटा जाए आना जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे जिस तरह खुदा रखा तो कमेटी डाली, भैया आप आज नहीं जाओगे तो कल वो भी नहीं आएंगे। यार ये क्या बात हुई? असल वो तरबियत है जो आप फरमा रहे हैं। जिंदा भी होंगे नहीं होंगे, हम भी जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, हम यहाँ फौत होंगे वहाँ फौत होंगे, कहाँ होगा, क्या हमारा होगा खात्मा किस तरह होगा, तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम सिर्फ यही कमेटी डालना सिखा रहे हैं। तो भाई हम फौत की बह नहीं जाएंगे, वो भी नहीं आएगा, लिहाजा जाओ यार। हाँ, ये अजीब बात है। कभी किसी ने कहा कि यार बीमार हो जाए तो आप जाके ताज़ी उसको जो है ना उसकी अयादत करें। जो बंदा बीमार की अयादत करता है सारा दिन वो जन्नती फल खाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जन्नती फल से मुराद क्या है? यार वो जन्नत में रहते हैं तो फल खाता है ना। वाह वाह वाह। ये रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा बीमार की इयादत करता है, जो वो कदम उठा के जाता है, एक एक कदम पे पता नहीं कितने कितने अल्लाह नेकियां अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बताएं इस वक्त इस्लाह मुआशरा में बताएं ये कितना कीमती वक्त है कि जब हम सहरी के टाइम भी अपने बच्चों के साथ होते हैं और अफ्तारी के वक्त भी अपने बच्चों के साथ होते हैं, और अच्छा खासा टाइम हमें मिलता है जो पूरा साल नहीं मिलता हमें टाइम। सही फरमा रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं। अयादत सिखाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएं, वालिदैन का एहतराम सिखाएं, उसके बाद ताज़ियत सिखाएं। सही फरमा रहे हैं। ठीक है, हम बुनियादी सिखाएं, बुनियादी चीज़ें सिखाएं। ये क्या बात हुई? हम बैठ के वहाँ पर जो है ना जी ये सिखाते हैं कि स्टॉक कैसे करना है। खजूर स्टॉक होगी, उसका रेट जब इतने पे आएगा तो इतने बेचेंगे। है जी। ये मिसवाक कैसे स्टॉक करनी है भाई, मिसवाक में भी स्टॉक हो रही है जनाब। जी। आगे रमजान की सेवियां भी स्टॉक हो रही हैं भाईजान। सही फरमा रहे हैं। चीनी खैर से पहले शाह अल्लाह के फजल करम से ये भी ज़ाहिर है इस औलाद को सिखाया है ना सारों ने। जी बिल्कुल ऐसे ही अगली जनरेशन तक यही जिनको मिला है। अच्छा, उधर से वो स्टॉक कर रहे हैं, उधर से रेट बढ़ा रहे हैं, उधर से सदके खैरात कर रहे हैं और मस्जिद की तरफ भागे जा रहे हैं। और बस अब देख लें, अब तो मस्जिदें भी बंद हो गई हमारे लिए जनाब किबला।
اب تو حرم بھی بند ہو گیا, صحیح فرما رہے حرمین شریفین بھی بند ہو یہ گئے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ یہ تو بالکل بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے اور بندہ سمجھ نہیں رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بندہ سمجھ نہیں رہا. اب جیسے میاں صاحب سے پوچھیں آپ, میاں صاحب دیکھیں کشمیر کا کیا حالات ہے. جی میاں صاحب آپ اس حوالے سے روشنی ڈالتے ہیں, ان کا بڑا تجزیہ اس بارے میں. ایسا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, میں بھی چاہتا تھا آپ میرے سے سوال کریں. دیکھیں اب ٹی وی چینل پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرف کشمیر کی شہادتی قبریں دکھا رہے ہیں اور ایک طرف ان کو جلے ہوئے کو دکھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ یہ چیز, وہ اس چیز سے بھی توبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو ان کو انڈیا کے لوگ, میں کافی چینلوں پہ دیکھا کہ جو مسجدوں کے اندر پولیس والے ڈنڈے مار کے ان کو مسجدوں سے لکھا رہے ہیں لوگوں کو, اب وہ ان کے آگے بیٹھ کے معافی مانگ رہے ہیں ان سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اب آپ دیکھیں, حالانکہ ہندو ایسا طبقہ ہے وہ نہیں کبھی کسی کو مانتا اپنے بت کے بلاؤ, وہ اب اس لائن پہ آگے وہ کہتے ہیں کہ اپنے کیا نام ہے, آپ مسجدوں ہمارے لیے دعا کریں, آپ کا رمضان ہے, رمضان کے لیے. میں کہتا ہوں ان کو یہ بددعا جو لگی ہے نا, یہ کشمیری بھائیوں کی بددعا لگی ہے, کشمیری شہید ہوئے ہیں ان کی بددعائیں ان کو لگی ہیں. آج یہ لاک ڈاؤن ختم کریں تو انشاءاللہ دیکھیں کس طرح کی چینجنگ آئے گی. میاں صاحب اتنا بڑا لاک ڈاؤن تو کہیں بھی نہیں ہوا ہے, ان کو انشاءاللہ ختم کرنا پڑے گا. اب جو وہاں کے جو ہندو اٹھ چکے ہیں اس سلسلے کے لیے کہ آپ ان کے کشمیریوں کو, ان بھائیوں کو رہا کرو. وہ میں تو کہوں گا کہ انشاءاللہ ایسے لگتا ہے مجھے کہ جیسے ہندو مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح فرما رہے ہیں, اللہ اب جس طرح کا وہ دکھا رہے ہیں انشاءاللہ ہندو مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ کشمیر بھائی اب انشاءاللہ ان کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا. انشاءاللہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ انڈیا میں رحم کرم ہوگا, ورنہ انڈیا کا حال بہت برا ہوا. میاں صاحب کیسا مطلب اب دیکھیں نا, ایک طرف وہ قبریں دکھائی گئی اور ایک طرف وہ جلی ہوئی جو ہے نا وہ ان کی دکھا رہے ہیں. ہمیں دکھ ہے, ہمارے ہمسائے ہیں, دیکھ نا ہم نے انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں دکھ ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں دیکھ کے خوش ہمراضی نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن حقیقت کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. حقیقت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے. جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انہوں نے کیا, یہ مکافات عمل ہے. کاش کہ وہ ہمارے ہندو بھائی بھی اس چیز کو سمجھیں, اس کو ریئلائز کریں کہ ظلم, ہر ظلم ہے آخر بڑھتا ہے تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ میں ان کے لیے کروں گا. بس ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان سے بھی کہا جو مدد ہوگی ہم پاکستان ان کے لیے کریں گے. انہوں نے کبھی ایسا بیان نہیں دیا. پاکستان میں سیلاب بھی ہیں, پاکستان میں ڈینگی بھی ہے, انہوں نے کبھی ایسا بیان نہیں دیا. اب ہمارے وزیر اعظم نے بیان دیا, وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ جتنی ہوگی ہم ان کی امداد کریں, مدد کریں گے جتنی بھی ہوگی. لیکن اللہ پاک نے فرما دیا یہ مور سبت ہے, وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صحیح کہہ رہے ہیں, حق آ گیا, حق چھا گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. بالکل بہت بڑی بات ہے جی. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں, جس طرح میاں صاحب نے فرمایا, ہم انسانیت کے اعتبار سے, جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا, دیگر ایدھی صاحب نے کہا, دیگر ہمارے اداروں نے کہا, ٹھیک ہے جی, گو کہ پھر اس کو بھی مذاق اڑایا گیا. لیکن ہمیں کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ مذاق اڑائیں یا کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے نا جی. ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھائی. صحیح فرمایا. ہم اپنے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں, انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معافی عطا فرمائی. بالکل صحیح فرمایا. ہمارے لیے تو ان کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہمیں تو مہمان نوازی سکھائی گئی ہے, ہمیں تو ہمسایہ کے حقوق سکھائے گئے, ٹھیک ہے جی. ہم اس کے اوپر قائم ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. اور بالکل قائم ہے. اگر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ہندوستان کے ہر مظلوم, بیمار اور ہر وبا کے زدہ بندے کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ اسی صحت کو, اسی وبا کو ان کے لیے باعث نجات بنائے اور ان کو اللہ ہدایت کا رستہ دکھا دے. بالکل صحیح ہے. میاں صاحب اصلاح معاشرہ کا جو عمل ہے اپنی ذات سے شروع ہو کر گلوبل ولیج تک پہنچتا ہے. جی. دیکھیں نا, ابھی فیصل ایدھی نے انہیں 50 ایمبولینس کی پیشکش کی. جی. 50 ایمبولینس بہت معقول رقم کی آتی ہے. میرے سامنے 500 ایمبولینس کی آفر کی ہے جناب. اچھا. ایک رپورٹ کے مطابق 500 ایمبولینس. اچھا. اب 500 ایمبولینس دیکھیں نا بھائی, کروڑوں اربوں روپے کی اس کے ساتھ. اور یہ بھی کہا گیا عملہ ساتھ جائے گا, آپ کو وہاں پر ہمیں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, روٹی بھی نہ دیں آپ ہمیں. اچھا. کچھ بھی نہیں, ہر چیز ہم خود افورڈ کریں گے. اب یہ دیکھیں نا, یہ انسانیت کا درد ہے. بالکل ہے, جو ان کو والد سے وراثت میں ملا. جی ہاں, بالکل ایسے ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو درد اور احساس ہے کسی بھی ایک شخص میں, کیا یہ پوری قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا؟ پوری قوم میں پیدا ہے الحمدللہ.
اس کا عملی مظاہرہ میاں صاحب اس وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا جی کہ بھئی اگر عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ جی وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، جی ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو کلیدی کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور ایک وقت وہ ہوا کہ جب وہ ان کے انتقال کے بعد تینوں افواج کے جو سربراہ ہے وہ انہیں سلوٹ کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کے کو آنر دی گئی، اس کے کام کو اپریشیٹ کیا گیا. لیکن جو ابھی آپ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں معاشرتی طور پر کہ جن برائیوں کا ہم شکار ہیں، تو میرے ذہن میں وہ ایک تصور آتا ہے کہ وہ برائیاں ہمارے اندر سے کیوں نہیں نکل پاتی جبکہ شیطان قید ہے، تو پھر ہم اس طرف کیوں راغب ہو جاتے ہیں؟ اصل میں جی ہمارا فوکس بھی بہت زیادہ جو ہے نا برائیوں کی طرف ہو گیا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں ایک عرب ملک میں گیا ہوتا سیر سپاٹے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں میں گیا تو میرے وہاں جو میزبان تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ کل یہاں پر ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے. اچھا جی جی، ایک کالا آیا ہے حبشی، تو اس نے جو ہے نا ادھر ایک ڈکیتی کی اور بندہ مار دیا. اچھا ہاں جی، اور 1 گھنٹے بعد وہاں کچھ نہیں تھا، وہی کاروبار چل رہا تھا سارا معمول کے مطابق. ایک دفعہ میں اور ایک عرب ملک میں تھا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، تو میرا خیال تھا سویرے اخباریں بھری پڑی ہوں گی اور سارا میڈیا بھرا پڑا ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا. کوئی لاش ادھر بکھری پڑی تھی، کوئی پاؤں ادھر تھا، کوئی سر ادھر تھا، حشر نشر پہاڑوں کے اوپر پھیلے پڑے تھے. تو میں نے کہا یار پتہ نہیں یار کیا ہوگا. ایک دفعہ میں ترکی گیا، تو ترکی جو میں نے وہاں استنبول جو چیک پوسٹ کراس کی، اس کے ویری نیکسٹ 5 to 6 منٹ میرے گھر سے یعنی کہ پاکستان سے کال آئی کہ یار وہ ادھر ترکی میں جو ہے نا استنبول میں بم بلاسٹ ہوا ہے، تو ایک خودکش حملہ ہوا ہے، آپ کدھر ہو؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ پہ ہوں. اس نے کہا وہیں تو ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی میں تو وہاں سے گزر آیا ہوں، میں تو ادھر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور وہاں ہوا تھا. میں سر پوری ماشاءاللہ دنیا میں نے دیکھی ہے جی، ٹھیک ہے، جتنی وارداتیں جو امریکہ میں ہوتی ہیں اتنی وائلیشن کہیں بھی نہیں ہوتی. صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جتنے بھی بڑے بڑے نام یہ آپ کنٹریوں کے لے لیں نا جی، وہاں شام کے بعد آپ بندہ باہر نہیں جا سکتا. صحیح کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے نام کوئی نہیں، ایک نام لے لیں آپ، ساؤتھ افریقہ کا نام لے لیں آپ، جوہانسبرگ کا نام لے لیں، شام کے ٹائم آپ باہر نہیں نکل سکتے. یہ ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں راجہ صاحب، یہ باتیں بنی ہوئی ہیں ایسے. ہمارا معاشرہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ان سے اخلاقیات میں، ہاں جی، اس میں تعلیمات میں 1000 گنا بہتر ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے خلاف ہو کیا رہا ہے، جو کچھ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، جو ہمارا میڈیا سارا دن برائیاں دکھا رہا ہے، سارا دن برائیاں دکھا رہا ہے، اور ایسے ایسے ٹائٹل بنا بنا کے برائیاں دکھا رہا ہے. کوئی حد ہے یار. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اور جھوٹی خبریں سب، اور اس کے ٹائٹل پڑھ کے دیکھیں آپ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نیکی کی طرف توجہ کریں گے نا تو آپ کو بہت نیکی نظر آئے گی، اور بندہ اگر کسی کے اندر برائی ڈھونڈنا چاہے تو اس کے اندر بہت برائیاں نظر آئیں گی. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہم 4 دوست بیٹھے ہیں، ابھی نقطہ نظر اپنا بنا لے کہ میں نے توبہ سخ اللہ فلاں دوست کے بارے میں برائیاں ڈھونڈ رہی ہیں، تو ابھی پوری کتاب لکھ کے دے دیں گے آپ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھائیاں ڈھونڈ رہی ہیں تو بھی پوری کتاب لکھی جائے گی. اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا، دوسرے کا شتیر جو ہے وہ نظر جی جی. ہم نے سر جی پوری من حیث القوم جو ہے نا جی اپنے آپ کو خود ہی گندا کرنا شروع کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ بتائیں یہ فٹ بال کا جو بھی بتا رہے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو مجھے فگر یاد نہیں تھی کہ 30 لاکھ لگا 35 لاکھ لگا. آج مجھے بتائیں کون بندہ خرچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. 40 ٹیمیں آ رہی ہیں جناب، کون خرچ کرتا ہے؟ بالکل. یہ وائی سی ڈی او میں آپ یہ دیکھیں، یہ مریض جو ہے نا سارا دن صبح سے لے کے شام تک 5 روپے کی 10 روپے کی پرچی پہ سارے جناب وہ اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں، اور فری میں بھی ہو رہے ہیں جناب، بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ایک ادارہ نہیں ہے، ایسے سر آپ کے سامنے ہے. سیرانی ویلفیئر ٹرسٹ تھوڑا کام کر رہے ہیں، ایدھی صاحب تھوڑا کام کر رہے ہیں. کمال ہے جی. کتنا ٹرسٹ ہے ہمارے، تھوڑا کام کر رہے ہیں. ہم فوکس کر ہی نہیں رہے ان کو. صحیح کہہ رہے ہیں. ہیلی کاپٹر ہمارے پاس ہیں امداد کے لیے. سب سے بڑا جو ایمبولینس کا نیٹ ورک ہے پوری ورلڈ کے اندر سب سے بڑا پاکستان کے پاس ہے. بالکل ایسی ہے. سب سے بڑا خیرات دینے والا ادارہ پاکستان ہے. یہ شوکت خانم جو کس طرح بن گیا جی، اور یہ جناب انڈس جو چل رہے ہیں ہسپتال، یہ کیسے بن گئے جی؟ یہ اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کیسے بن گئے سارے؟ آپ جدھر بھی دیکھیں، آپ دیکھیں اتنا رحم اور اتنا کرم کا معاملہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فوکس نہیں کیا جا رہا ان چیزوں کو. صحیح کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے فوکس صرف اپنی برائیوں کو ڈھونڈ کے وہ گندی مکھی کی طرح کیا ہوا ہے جو پورے سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے صرف پھوڑے والی جگہ پہ بیٹھتی ہے. سارا میڈیا اسی برائی میں، جیسے پاکستان کا معاشرے سے گندا کو معاشرہ نہ ہو. آپ مجھے بتائیں، میں سر جی گیا تھائی لینڈ، وہاں میں میرا جو میزبان تھا مجھے پتا چلا کہ اس کی عمر 70 سال ہے.
अच्छा जी, जबकि वो जो है ना ऐसे बैठा था जैसे कि 30-35 साल का लड़का बैठा हो। वाह। जब मुझे पता चला कि इसकी उम्र 70 साल है तो मैंने बाकी भी दोस्तों अहबाब के बारे में फिक्रमंद हुआ कि यार इनकी भी मैं रिसर्च करूं कि इसकी उम्र कितनी है। पता यही चला कि अल्लाह के फजल व करम से 60-70 से नीचे कोई भी नहीं था और सारे यंग थे। वाह वाह जी। उधर जो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी मेजबान थी तो मैंने उनसे कहा यार ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, ये थाईलैंड है भाई, ये मलेशिया है भाई। इधर यहाँ पाकिस्तान में ये बहन की शादी करनी है, ये फुप्पो को भाई फुप्पो की बेटी की शादी करनी है, ये खाला की बेटी की शादी करनी है, ये खाला के बेटे की करनी है, ये फलां काम करना है हमारा। तो एक पूरा खानदानी निजाम है। वाह जी सर, हम एक दूसरे की मदद हम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। वाह वाह। कौन आप मुझे कोई वर्ल्ड के अंदर मुझे दिखा दें ऐसा निजाम। पूरा हमारा निजाम है यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात। पूरा निजाम है। अब शादी होती है वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जो हमारा गैर से गैर भी वहाँ साथी आता है ना जी, जिसको आप गैर कहते हैं, वो भी 5-4 हज़ार का लिफाफा दे के जाता है। वाह वाह। जिससे वो सारे पैसे इकट्ठे करके अपने शादी का खर्चा पूरा कर लेते हैं। क्या हुकूक लिबाद है, किस जी, कहाँ शादी हो रही है, ये 100 जोड़े शादियाँ करवा रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। मसला ये है कि जब आप एक मतलब है एक नियत ही कर लेंगे बुराई ढूंढने की और उस गंदी मक्खी की तरह जनाब के भाई जख्म पे बैठना है तो भाई सारे जख्म ही नजर आएंगे और गंदी मक्खी नजर आएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, पूरी वर्ल्ड को चैलेंज है मेरा, किसी आप मुआशरे में मुझे दिखा दें इस तरह से होता हो। ना सिर्फ बहन की शादी करनी, बहन के बेटों की भी करनी, बहन की बेटियों की भी करनी, उनके बच्चों का भी ख्याल रखना, ईदियाँ भी देनी। वाह 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 वाह। अब ईद आ रही है, आप बताएं आप ईदियाँ पहुँचाएंगे बेटी को कि नहीं पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे। बेटों को पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे? बहुओं को, अगर कोई बेटा को कमजोर है तो उनको भी साथ उनका भी ख्याल रखना है। और फिर वो पोते पोतियां दोते, यार मैं पागल हूँ, मैं एंजॉय करूँ। क्या हुस्न माशरत है ये। जी सर, इसको किसी को पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। इस तरफ कोई लेके नहीं आता बात को। ये चीज हाईलाइट करने की है। देखें एक अच्छा, और देखें आप जो हमारा यहाँ हो रहा है, मैंने जनाब अपनी बहनों को सूट भिजवाए और 3 ने वापस भेज दिए। उसने कहा ये सूट हमारे पहनने के हैं। अल्लाह अकबर। क्या प्यार के मुताबिक जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा भाई ये इजी पैसा लोड करवाओ, अपना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये रोजाना की सूरत हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, डेली की। ये कहाँ से ढूंढ के लाएंगे ऐसा खूबसूरत माशरा, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अच्छा जी, आप देखें मैं तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ 30 साल से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सर जी प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर ना मेरा 30 साल में मेरे मतलब 3-4 दर्जन से ज्यादा मेरे प्रोजेक्ट है जाती। और जो फसाद की जड़ें होती हैं, जो जर जमीन इसको कहा जाता है, ये फसाद की जड़ें हैं। ये ठीक हो गया। हमारे बिजनेस में 3 चीजें मौजूद होती हैं। जमीन ऑलरेडी होता है, बिजनेस होता है हमारा, ठीक है। जर उसके अंदर ज़ाहिर है पैसा इन्वॉल्व होता है, जो हमने पे करना होता है या लेना होता है या देना होता है, ठीक है। और जन इस तरह होता है कि जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी विरासत होती है वह औरतें भी विरासत में शामिल होती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। औरतें भी विरासत में तीनों फैक्टर मौजूद हैं, तीनों फैक्टर मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब बताएं 30 साल में कोई सोच सकता है कि हमारा किसी कोर्ट कचहरी में एक केस भी नहीं है? वाह वाह माशाअल्लाह, कितने अच्छे तरीके से आपने डीलिंग की है। माशाअल्लाह फी अवल वल आखिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक केस भी ना हो, कोई सोच सकता है? सुभान अल्लाह। कैसे? मैं बताता हूँ। होता यह है कि अगर किसी साथी को, किसी हमारे जो बिजनेस हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, लेने वाले देने वाले, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना जी, आप कौशल सईदी राजा साहब, आप उसके पास जब चल के चले जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं खुद तो और जाके उसकी बात सुन लेते हैं, चाहे वो हक पे है चाहे ना हक पे, और अपनी आप मुद्दा सुना देते हैं, वही बातें मुक जाती हैं, आधा मसला खत्म हो जाता है। भाई लोग कत्ल माफ कर देते हैं, कहते यार चल के आ गए 4 दोस्त, यहाँ से ऐसा मुआशरा कहाँ से लाओगे आप? ये तो ऐसे बातें बनी हुई है जी, क्या है मुआशरे को बताएं। सही है, सही है। जो बंदा अच्छा मुआशरा कहता है वो सामने लेके आए, भाई कौन सा मुआशरा अच्छा है। ये ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर झूठे हमें पेश करके, फलां के पेश करके हमें मुतासर करने की कोशिश ना करें ना जी। ये नंगे लोगों, नंग धड़ंगे लोगों की हमें ना सुनाए ना का स्टोरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना जी। हमें तो वकार वाले कोई बात सुनाए, कोई वकार वाली बात सुनाए, कोई इज्जत वाली एहतराम वाली बात सुनाए, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। ये नंग धड़ंगे लोगों जिनका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना माँ की तमीज है, ना बहन की तमीज है, ना धी की तमीज है, ना लेना ना देना, इनका क्या आप हमें मुतासर करने की कोशिश कर रहे हो? सही कह रहे, जिनके लिए सूद भी हलाल है, जिनके लिए सुअर भी हलाल है, जिनके लिए
पीना भी हलाल है जिनके लिए, कबाब शबाब सब ये तो बंदे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हमें मिसालें दे के मुतासिर कर रहे हैं आप, ये यूरोप की फलां फलां की क्या मिसालें दे रहे हैं आप? ये हमने खुद सर जी अपने मुआशरे को खुद हमने गंदा किया है। एक बच्चा कमजोर होता है, सारा घर ही उसको कहता है ये गंदा है गंदा गंदा, तो वो गंदा हो जाएगा। अब छोटी मोटी खामियां खूबियां होती हैं, कमजोरी होती है, उसको सर नजरअंदाज भी करना चाहिए, इस्लाह भी करनी चाहिए। इस्लाह का एक ही तरीका है जो हुजूर ने शुरू किया, कुरान की तालीमात से शुरू किया, सही है, इखलाकियात से शुरू किया, ठीक हो गया। आपने जब ऐलान नबूवत किया तो आपने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, आप अपनी जात को मौजज़ा बना के कहा कि मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, तुमने मुझे कैसा पाया? उन्होंने कहा हमने आपको सादिक और अमीन पाया। सुभान अल्लाह, इधर कौन सच बोल रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर कौन अमानत में जो खयानत नहीं कर रहा? हालांकि हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला फरमान यही है कि मैंने तुम्हारे अंदर ये 40 साल गुजारे, तुमने मुझे कैसे पाया? और सबने कहा आप सादिक और अमीन हैं। सबने यही कहा, और एंड भी यही हुआ जब हिजरत का वक्त आया, 13 साल गुजर चुके थे हिजरत में और ऐलान नबूवत में, 13 साल, और उस सब भी अमानतें मौजूद थी। किसी का ईमान डावाडोल नहीं हुआ कि यार ये हमारी अमानतों में खयानत हो जाएगी। हजरत अली को अपने बिस्तर पे इसी मकसद के लिए लिटाया था ना कि अली ये अमानतें दे के आप आ जाना। तो इस वास्ते मैं ये समझता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इखलाक हसना है, हमें सबको उसको फॉलो करना चाहिए, बेशक। हमें किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुआशरा आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, आपकी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने पूरे आबोताब के साथ मौजूद है, और अल्लाह के फजल करम से मौजूद रहेगा। ठीक है, और अल्लाह से यही दुआ है कि रमज़ान की बरकतों से मिन हैसुल इंसान मिन हैसुल बशर जो हमारी तकसीरात हैं अल्लाह ताला से दरगुजर फरमाए, आमीन। और हमें अल्लाह पाक इस्लाह करने की तौफीक दे और तौबा की तौफीक अता फरमाए। हम तजदीद ईमान करें और मुनाफिकत से बचें, जो ऐसी बुराइयां हैं। लेकिन यह है कि बहरहाल मैं फिर भी नहीं है इकबाल ना उम्मीद, अपनी कश्त वेरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। मैं ये कहूँगा कि आजकल जो ये कोरोना की बीमारी चल रही है, आप SOP पे सारा अमल करें और कम से कम मास्क जरूर लगाएं। आप अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। हाथ धोएं आप बार बार, जैसे घर जाएं हाथ धोएं, बाहर निकलें, मतलब पूरा अमल करना चाहिए ताकि हम दूसरों को बचा सकें, अपने आप को भी बचा सकें। क्योंकि आप देखें जिस तरह इंडिया में इतना बुरा हाल है, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद ये भी करते हैं रमज़ान का महीना इंशाल्लाह, इसमें इंशाल्लाह आप दुआएं करें। अब इबादत की रात भी आने वाली है, उसमें सब दोस्त दुआएं करें इंशाल्लाह, इससे हमारी जान छूटे ताकि ईद हमारी अच्छी गुजरे, सब दोस्तों की, सब दोस्त एक दूसरे से ईद पे मिलें, मुआशी मसाइल ख़त्म हो। तो मियाँ साहब, आप भी ज़रा मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी जामे मैसेज, कोई जामे मैसेज मैं दोबारा यही अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह से इस वक्त हालात हैं, कोशिश करें बावजू रहें, कोशिश करें बावजू रहें। वज़ू से ये होता है, हाथ भी जैसे मियाँ साहब ने फरमाया धुल जाते हैं, नाक में भी जो कि ये जो जरासीम है और इसका वायरस का जो है ज़्यादा स्टे नाक में रहता है। जब वो नाक में खलाल करेगा और वो नाक धोएगा, साफ़ करेगा और वज़ू करेगा, उससे ज़्यादा और फिर रिस्क में भी बरकत है और बीमारियों से भी निजात है और डिप्रेशन से भी बंदा बचता है और ब्लड प्रेशर से भी उसको अफाका होता है, बहुत सारी मतलब है मुसीबतों से बचता है। तो रमज़ान मुबारक में अगर यही आदत ही अपन बना ली जाए बावजू रहने की, तो ये भी बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ, क्या खूबसूरत बात किया। मियाँ मोहम्मद जावेद कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इस आप जनाब कारी मियाँ अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने माशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात, जैसा कि मियाँ साहब ने कहा कि आजकल बीमारी उरूज पर है, तो मैं भी आज माशाल्लाह जो कोरोना से बचाव की वैक्सीन है वो मैं लगवा आया हूँ। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं माशरे में, उन्हें भी चाहिए कि दिल में अगर कोई ऐसी बात है कि जो ख़दशात पैदा कर रही है, तो इन ख़दशात को अपने जहन से निकाल दें। और मुख्तलिफ़ सेंटर्स बने हुए हैं और वॉक इन है, वहाँ जाएँ और वो वैक्सीन जो है वो लगवाएँ। इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे, और जब हम महफूज होंगे तो हमारे घर वाले भी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। तो अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, पर
बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.